हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन NGO. There is a most important for the human rights. Accordingly, their impact on human rights has a both about is a profound change in the notions of state or sovereignties. Today, no nations can be said that way. It is treated the citizens is purely as a domestic concern. And the globalization of human rights with their modern concept of global village has resulting in the human right situation anywhere in the world become a matter of international concern. The voluntary organization, which are also called non-governmental organization, all over the world has begun to support and promote human rights in all society. And the action of international non-governmental organizations like their Amnesty of International and the Human Rights Watch, the organization like the People as a Union and Civil Liberties, with regard to massive human rights elaboration in the Burma and the Yugoslavia and the Kosovo, Bosnia and the Rwanda is the East Timor and Syria, Lebanon and Sudan and Gujarat in India, and the number of other places of the confessed are the as well example of this concerned. The activities such as organization are coordinated at the international level through the human rights. A commission established by the General Assembly of the United Nations in 1946. As a result of these activities of the non-governmental organization, it has known become a familiar requirement for a state and submitted report to be a statutory organs, human rights community, as children communities. Human community is a concept of the elimination of their racial discrimination, etc. About their international implementation of human rights is a obligation. Half a century back, it would be has to appear unthinkable that as against the state would be periodically is submitted a report to an international body about their internal matters involving a treatment of their citizens by their government, and then the state of participation in a discussion of the report with the number of an international body drawn from all over the world. Such is the power of the idea of human rights today. The impact of non-governmental organization with regard to the protection and promotion of human rights is no longer debatable. The impact is clear and visible. Among which there is a Genius Human Rights is an agency, officially are non-governmental and human rights. The movement in India is quite strong. One greater some buildings a block in preventing of violation of human rights. It is a poverty. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गैर सरकारी संस्था की भूमिका, अकॉर्डिंग टू जो मानव अधिकार है उसके रिगार्डिंग ये आया है कि गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या हो सकती है, यानी NGO का क्या रोल होता है हमारा मानव अधिकार के अंतर्गत। कहते हैं मानव अधिकार का प्रभाव किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता की अवधारणाओं में से एक बदलाव लाया है। कहते हैं वर्तमान में कोई भी देश अपने नागरिकों को घरेलू सरकारों से परेशान नहीं कर सकता है। नवीन अवधारणाओं से मुक्त मानवाधिकार को भूमंडलीकरण ने विश्व को एक जो है भूमंडलीय गांव बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकार के मामले अब वैश्विक सरोकार से जुड़ गए हैं। सर्वोच्च संस्थाएं, जिन्हें गैर सरकारी संस्था भी कहा जाता है, को विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त है और यह पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में मानवाधिकार को समर्थन एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्व में हर जगह जो है NGO जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान और विशेष अपना सराहना कार्य भी कर रही है। अगर हम देखा जाए यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच एंड प्लूएजस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य, जैसे पूर्व यूगोस्लाविया, कोसंबो और वेलेंसिया आदि, रवांडा, पूर्वी तिमोर और सिरोनिया, सूडान और भारत में गुजरात एवं ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ उपरोक्त संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इन संस्थाओं के क्रियाकलाप के बीच 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग तालमेल करता है। गैर सरकारी संस्थाओं के उपयुक्त क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के लिए सर्वैधानिक संस्थाएं जैसे मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति और जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति आदि सम्मिलित हो चुकी है।
के सामने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आवश्यकता हो गया है। यानी इन चीज़ों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो है एनजीओ का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। देखा जाए तो लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह अनुभव करना सोच से परे था। यानी आधी शताब्दी पूर्व हम इस बात के सोचे तो ये संभव ही नहीं था कि यहाँ पर प्रभु संपन्नता राष्ट्रीय अपनी आंतरिक रिपोर्ट को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने रखकर यह बताए कि उसने अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य उसके व्यवहार पर चर्चा करें। किंतु आज मानवाधिकारों की अवधारणाओं की शक्ति का यह रूप हमारे समक्ष उपस्थित है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कहते निवार्थ है। इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता भी है और मानव अधिकारों के मूल्य एजेंसियों के साथ जो है सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ने से भारत में मानव अधिकार आंदोलन काफ़ी सक्रिय हुआ है और मानव अधिकारों के संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। कहते हैं मानव संस्थाएं यानी मानव एजेंसियां जो जितनी भी बनाई गई है तो मानव अधिकारों के लिए ये बहुत ही ऊपर खड़ी हुई है। एनजीओ जो है बहुत रूप से जो है भारत में जो है सक्रिय भूमिका अदा कर रही है, लेकिन मानवाधिकार के लिए सबसे अधिक बड़ा जो रुकावट है वो गरीबी है। कहते हैं भारत में गरीबी प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और इससे जो है मानवाधिकार के लिए जो है बहुत ही खनन का रास्ता उत्पन्न कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ आती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था मानवाधिकार। अगला चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि मैं जो है यूट्यूब पर से सर्च करके जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के वीडियो देख सकता हूं, तो शायद आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे तो वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना ही आपके भलाई में रहेगा। इससे ये होगा कि कोई भी अगर वीडियो आप देखना चाहोगे तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियो का ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसमें आप जो भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छे अंक भी प्राप्त कीजिएगा।